Morning class, this is your Aisha ma'am, and now let's we start with chapter first, which is crop production and management, right? In last video we can understand about what is the crops and what types of crops we are producing in our country, and after that we also discussed about what is kharif crops and what is rabi crops. After these things we also discuss about agriculture practices, where we know what is the preparation of soil. After that what is the showing process. Now next topic is adding manure and fertilizer, right? The substance which are added to the soil in the form of nutrient for the health growth of plants are called manure or fertilizer, right? Now you can say that sometimes you see farmers, they are adding some fertilizers, right? Fertilizers and manure both are different things, right? Now we can understand what is the manure and fertilizer. Okay, let's see. The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the health and growth of plants are called manure and fertilizer. Buzo said, I saw the healthy crops growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? Now you can understand what kind of things that are, right? So, supplies minerals, nutrients to the crops, essential plants. These nutrients are essential for the growth of plants in certain areas. Farmers grow crops after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. Continuous cultivation of plants, cultivation of crops make the soil poor in nutrients. Therefore, farmer have to add manure to the field to replenish to soil and the nutrients. This process is called manuring, right? Now you can understand what is the manuring process. After that, this process is called manuring. Improve or insufficient manuring result in weak plants. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants and animal wastes. Farmers dumps plants and animal wastage in a pit at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some in microorganism. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned about vermicomposting in class 6th, right? Now you can understand what is the things we will discuss in manure and fertilizers. Manuring is like whenever you put some kind of vegetables, peels of vegetables and plants, dead or decay parts, right? um, all these things you put in a ground. After that, sometimes later you can see that some vermi microorganism attack in that, then that part of plants and decompose all the ingredients, right? Now you can understand what manuring process. And after the fertilizers, we can say that fertilizers is the kind of thing which is uh, which is produced in a factories, right? Humans prepared fertilizers in a laboratory. Now both are different. Manure is organic, but in fertilizer are inorganic substances. Okay. uh, तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने जो जो चीज़ें समझाई समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो फिर से एक बार सोच समझने की कोशिश करिए कि मैन्योरिंग क्या है और फर्टिलाइजेशन क्या है, राइट? तो मैन्योर क्या होता है? जब आप क्या करते हैं, जो भी आपके घर में वेस्ट प्रोडक्ट है, पील्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके घर में यूज़ होते हैं, प्लांट से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं और फिर जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं, उनके डीके, उनके प्रोडक्ट्स को आप क्या करते
हैं, ग्राउंड में फेंक देते हैं, राइट। फिर क्या करते हैं, उस ग्राउंड को फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर लेते हैं, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या होता है, वो डिकम्पोज करते हैं और इन जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इससे न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं और उसे अगेन सॉइल में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो मैन्योरिंग की प्रोसेस समझ में आ गई कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है जो ये सारी प्रोसेस को करते हैं। सेम फर्टिलाइजर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स आर सेम काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लाइक अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो उसमें सारे सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट्स होता है, लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, जो भी चीज़ें हमारे सॉइल के लिए रिक्वायर्ड है ना, उसे हम लेबोरेटरी में बनाते हैं या ह्यूमंस बनाते हैं, लेबोरेटरी में उसे प्रिपेयर किया जाता है और उस फर्टिलाइज़र को आप खरीदते हैं शॉप से, और शॉप से ख़रीद के उसे डाल देते हैं, राइट। उसे अपने फील्ड में स्प्रेड कर देते हैं। और अगर हम मैन्योर की बात करें तो मैन्योर को आप खुद भी बना सकते हैं। सॉइल को आप सॉइल में ह्यूमस होता है, यू नो ऑल दिस थिंग्स कि व्हाट इज़ ह्यूमस, व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग। तो अर्थवॉर्म जो होता है वो क्या करता है, सॉइल को लूज़ करता है और क्या हेल्प करता है, मैन्योरिंग में हेल्प करता है, राइट। मैन्योर की प्रोसेस में हेल्प करता है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मैन्योरिंग, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट see this. manure is an Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal wastes. Farmers dump plant and animal waste in pits at open place and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposition matter is used as organic manure. You have already learned about vermicomposting in class 6. Now, activity 1.2. Look at here. Take moong or gram seeds and germinate them, right. What is the germination process, you know, how to germinate the seeds. Dry plants, put some dry plants, dry seeds in water and leave it for a day, for a night. You can see some white parts, that is called, which is called sprout. So these all are germinating process. Select 3 equal size seedlings. Take 3 empty glasses or similar vessels. Make them A, B, C. Like here, देखिए यहाँ पास जो एक्टिविटी आपको करते हुए दिख रहे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने देखिए क्या किया है, 3 ग्लासेस लिए हैं, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया है और उसे मार्क कर दिया है ए बी सी में। 2 glass A add little amount of soil mixed with a little cow dung manure, राइट। तो मैन्योर किससे बनाया जाता है, काउ डक से भी बनाया जाता है, काउ वेस्टेज से भी बनाए जाते हैं। तो एक में आपने क्या किया, सॉइल लिया और सॉइल में काउ डक का मैन्योर को ऐड कर दिया, ठीक है। दूसरी आपने ग्लास ली, इन ग्लास बी पुट सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विथ अ लिटिल यूरिया। अब आपने क्या किया, एक सेकंड ग्लास ली, उसमें आपने यूरिया मतलब सॉइल तो मिक्स किया है, साथ में उसमें यूरिया भी ऐड कर दिया, राइट। देन इन टेक in glass C without adding anything. Now pour the some amount of water in each glasses, right। अब आपने उसमें सब में पानी पोर कर दिया है या वाटर को फिल कर दिया है। then after and plant the seedlings in them, राइट। अब प्लांट द सीडलिंग्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स निकल आते हैं ना, जो सीड्स होते हैं उससे छोटे छोटे जो प्लांट्स निकलते हैं उसे हम सीडलिंग्स कहते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं, वाटर में पुट कर देते हैं। देन what is visible to you, that plant the seedling, keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days observe their growths, right। so preparation of experiment, and this is the observation. figure 1.3 का B section देखिए, there is the growing seedlings with natural manure and fertilizers। देखिए A में आपने manure मिलाया, ठीक है, मिक्स किया मैन्योर को। बी वाले ग्लास में आपने क्या किया था, यूरिया मिक्स किया था, यूरिया इज़ अ फर्टिलाइज़र, राइट। तो सेकंड में आपने फर्टिलाइज़र को ऐड किया और थर्ड में आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ सॉइल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा किसमें ग्रोथ हुई है, तो बी ग्लास में क्यों ग्रोथ हुई है, क्योंकि उसमें यूरिया था, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो प्रेजेंट था, इसीलिए फर्टिलाइज़र से ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई। बट fertilizer is harmful to us, for the soil also, right। So if you want to
grow plant in a large scale and want a large amount of production of crops, you should mix always manure, some kind of fertilizer you also add in this plants. Did plants in all the glass grow at the same pace? No. Which glass shown better growth on plants? In which glass was the growth fastest? Fertilizers are chemical which are rich in a particular nutrients. How are they different from manures? Fertilizers are produced in factories. Some example of fertilizers are urea, ammonium sulfate, sulfur phosphate, potash, then नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। पोटास एलम आपने देखा होगा, फिटकरी को बोलते हैं। फिटकरी जो आप लोग वाटर को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं ना, फिटकरी, उसे पोटास एलम बोलते हैं। तो ऐसा पोटास एक सब्सटेंस होता है, एक केमिकल प्रोडक्ट होता है जिसका यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र के एग्जांपल्स आपको पता चल गए, यूरिया है, अमोनिया है, सल्फेट है, सल्फर फॉस्फेट है, पोटास है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है, राइट। तो फर्टिलाइजर्स क्या है? फर्टिलाइजर आर अ केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, उसमें केवल एक या दो न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बाकी और न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप मैन्योर की बात करेंगे तो मैन्योर में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कंपेयर टू फर्टिलाइज़र बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बट मैन्योर इज़ बेटर देन फर्टिलाइज़र, राइट। So, the use of fertilizer has helped farm to get better yield of crops such as wheat, paddy, and maize. But excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. ठीक है, तो समझ में आ गया। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? अगर आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया फर्टिलाइज़र का, तो जो सॉइल होती है उसको क्या कर देते हैं, ये लेस फर्टाइल कर देते हैं, राइट। तो अगर फर्टाइल कम होगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र का अगर आप कंटिन्यूअली आप यूज़ करते जाएंगे तो इसका प्रोडक्शन, सॉइल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड the things we have substitute fertilizer with organic matter, manure, or leave the field uncultivated, follow in a between two crops. The same of manure improve soil. अगर हम मैन्योर की बात करें तो ये क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं सॉइल को, सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिमेनिंग कैपेसिटी, रिटेनिंग कैपेसिटी, राइट। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं और साथ में जो फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और ये सॉइल के अगर जो न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं धीरे धीरे क्रॉप प्रोडक्शन के कारण, तो उसे हम रीगेन करने में हेल्प करते हैं, रिप्लेनिश करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मैन्योर, what is fertilizer. Both are different, but if we say which one is better, now you can easily say manure is better than fertilizer, because fertilizer is containing a rich amount of particular nutrient, but manure is containing all kind of nutrients in a similar amounts, right. Now another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation, राइट। व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्रॉप रोटेशन। आप आगे भी इसे पढ़ेंगे। तो क्रॉप रोटेशन होता क्या है? क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है, समटाइम्स हम क्या करते हैं कि एक ही तरह के फील्ड को अगर आपने मतलब फील्ड में, अगर एक फील्ड में आपने एक ही तरह के क्रॉप को बार बार अगर आपने क्या किया, कल्टीवेट किया, तो अगर मान लीजिए मैंने पैडी की बात की, तो पैडी में आपने यूरिया का बार बार यूज़ किया, तो क्या हो गया? अगर पैडी को ग्रो करने में यूरिया न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा एक्सेस अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो धीरे धीरे आपके सॉइल से यूरिया कम होते जाएगा, राइट। बाकी न्यूट्रिएंट्स तो रहेंगे लेकिन यूरिया कम हो जाएगा, राइट। तो सेम ऐसा ही होता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। किसी प्लांट में सोडियम ज़्यादा कंटेन कर लिया, किसी प्लांट ने पोटेशियम ज़्यादा कंटेन कर लिया। अगर मान लीजिए बार बार आप उसी प्लांट को लगाएंगे तो वो तो बार बार सोडियम को ही ना कंटेन करेंगे, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रॉप का रोटेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी मेज लगाया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने पैडी फील्ड मतलब पैडी ग्रो करा दिया, फिर उसके बाद मैंने सोयाबीन ग्रो करा दिया, राइट। तो डिफरेंट
टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को मैंने प्रोड्यूस कराया, तो उससे क्या हो जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इक्वल अमाउंट में या सफिशिएंट अमाउंट में हमारे सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे. नाउ नाउ you can understand what is the crop rotation. This can be done by growing different crops alternately, right? Earlier farmer is northern India used to grow leguminous as fodder इन वन सीज़न एंड वीट इन द नेक्स्ट सीज़न, राइट. तो इस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को की जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट है उसको बैलेंस में रखने के लिए पहले क्या किया जाता था, पहले यही किया जाता था कि पहले लेग्यूमिनस, अगर वन सीज़न में आपने लेग्यूमिनस प्लांट्स को लगा दिए, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब पल्सेस, सेरल्स, लाइक दैट काइंड ऑफ प्लांट्स विच हैज़ लेग्यूम, राइट. जैसे राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स को आपने ग्रो कराया तो उसके नेक्स्ट सीजन में वीट, पैडी, मेजेस इसको ग्रो करा दिया, राइट. तो इससे क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ प्लांट्स होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ क्रॉप्स होता है, और ये हेल्प करता है, राइट, न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने में. ओके. So look at here, this helped in the replenishment of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt these practices, right? In the previous classes, you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of root of leguminous plants. You know that, right? Which is help to fix nitrogen from the atmosphere, right? Now you can see a difference between fertilizer and manure. This is the most important part of this chapter. Please learn carefully and understand the concept. What is the fertilizer, what is the manure? Fertilizer is a man made inorganic salt, right. This inorganic salts क्या होते हैं, जिसे मैन के द्वारा बनाया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है, ठीक है, जिसे नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा ऑब्टेन करते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट कहते हैं, राइट. मतलब इनऑर्गेनिक कहते हैं. ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसे एनिमल से बनाया जाता है, एनिमल प्लांट्स प्रोडक्ट से, मतलब लिविंग थिंग से ऑब्टेन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किया जाता है, उसे हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं, राइट. तो फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट. मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय the decomposition of cattle dung and plant residue. Fertilizer is prepared in factories, you know that, and manure can be prepared in the field. Fertilizer does not provide any human to the soil, not any humus to the soil. Humus नहीं provide करते हैं fertilizer, right. और जो manure है provide a lot of humus to the soil, right. Then next, fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, but manure is relatively less rich in plant nutrients, right. So now you can understand what is fertilizer, what is manure. You can also explain with example both the things. This topic is too much important, that's why I am discussing a lot now. What is the advantages of manure? What is the advantages? The organic manure is considered better than the fertilizer. This is because it enhances the water holding capacity of a soil. It makes the soil porous due to with exchanges of gas become easy. It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of soil. Now you can understand what is the things, why manure is better than fertilizer, right. Now next is irrigation. This chapter is mm, some large type kind of chapter, okay, but it is interesting to understand the things which is used in different type of method, right. different type of techniques. ओके. देखिए, ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कंट्री है, जो हमारी इंडिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है ना, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है. मतलब जिससे हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट अगर हम रिसीव करते हैं ना, अगर इकोनॉमिकली देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हम एग्रीकल्चर के थ्रू हम मनी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. तो ये हमारा मतलब बेस है.
हमारी इकोनॉमी का बेस है एग्रीकल्चर, इसीलिए हमें इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि फार्मर्स कैसे इस फील्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे कैसे क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोचिए आप जैसे कितने ह्यूमंस हैं जिनको ये क्रॉप बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, सबको चाहिए, सबको चपातीस खानी है, सबको पिज़्ज़ा खाना है, सबको बर्गर खाना है, लेकिन उसको प्रोड्यूस करना भी तो ज़रूरी है ना। तो अगर आप इसकी टेक्निक्स को नहीं जानेंगे तो आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसीलिए बस इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन इज काइंड ऑफ वाटरिंग योर क्रॉप्स, राइट। जैसे हम जब वाटर किसी जैसे हमने कोई पौधा लगाया, कोई प्लांट लगाया और उसमें हमने वाटर डेली हमने उसमें पानी आप देखते हैं ना, डेली वाटरिंग करते हैं अपने छोटे छोटे प्लांट्स में, क्या होता है उससे उससे प्रॉपर ग्रोथ होती है प्लांट्स की। उनके लिए रिक्वायर्ड है वाटर, क्योंकि वो वाटर की हेल्प से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो वाटरिंग की प्रोसेस भी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड इरीगेशन, ठीक है। तो इरीगेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ वाटरिंग। Now, look at here. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plant contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. Water also protect the crops from both frost and hot air currents. To maintain the moisture of soil for healthy crops growth, field have to be watered regularly. The supply of water to crops at regular interval is called irrigation, ठीक है। तो वाटर सप्लाइंग की प्रोसेस को ही इरिगेशन कहते हैं। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, ठीक है। टाइम और इंटरवल दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो उसमें आप कम इंटरवल ऑफ टाइम में वाटरिंग करते हैं। किसी प्लांट्स को कम पानी में ही वो ग्रो कर जाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये डिफरेंट क्रॉप टू क्रॉप वेरी करते हैं कि आपको कब वाटरिंग करनी है, कब नहीं करनी है। Soil to soil and season to season. In summer, the frequency of watering is higher. Why is it so? Could it be due to the increasing rate of evaporation of water from the soil and the leaves? Right? Buzo. Buzo said, I am very careful this year about watering the plants. Last summer, my plants dried up and died. तो समर टाइम्स में वाटरिंग प्रोसेस हाई क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि वाटर क्या करते हैं, इवेपोरेट होते हैं ना, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो लीव्स होती है उसमें जो वाटर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट होने के बाद उसमें वाटर की जो वाटर कैपेसिटी है वो लो हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, राइट। they lost their water, so we have to watering the plants in proper time in regularly, right. Now, source of irrigation. What is the source of irrigation? The source of water for irrigation are wells, tube wells, ponds like lakes, rivers, dams and canals, right. Now you can know what kind of sources you get the water. आपको पता है डिफरेंट होते हैं, लेक से भी, वेल से भी, बेल ट्यूबवेल्स देन पॉन्ड्स, तालाब, है ना, लेक्स, झील, रिवर्स, देन डैम्स एंड कैनाल्स ऑल्सो, है ना। तो ये वाटरिंग प्रोसेस है। तो ट्रेडिशनल मेथड है इसके भी। अब जब हमने इरिगेशन पढ़ लिया तो इसके भी टू टाइप्स ऑफ मेथड्स है। वन इज़ ट्रेडिशनल मेथड which ancient time we will used this method, and now some kind of modern techniques are there for irrigation, right. So firstly we study about traditional method. So what is traditional method? Look at here, one in this picture 1.4 mode system. This is called mode system. What he do, he pull the water from the wells and supply to the plants, right. So
The water available in wells, lake and canals in lifted up by different methods in different region for taking to the field. Kettles और human labor is used in these methods. ठीक है, तो इन मेथड्स में किसका यूज़ किया जाता है? केटल्स का भी यूज़ किया जाता था और ह्यूमंस का भी यूज़ किया जाता था। और ये मेथड्स जो थे इसमें लेबर ज़्यादा था, मेहनत ज़्यादा था। ठीक है, मेहनत ज़्यादा लगती थी कि वाटर को आप पुल कर रहे हैं, उसमें आपको एनिमल्स की भी हेल्प चाहिए, फिर आप उसको सप्लाई कर रहे हैं, वाटर को पूरे फील्ड में स्प्रेड कर रहे हैं, तो इसमें टाइम लगता था, राइट। दीज मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये तो सस्ते थे क्योंकि इसमें कुछ लगना नहीं था, बट पैसे नहीं लगते थे, है ना। बट क्या था, बट लेस एफिशिएंट था, मतलब इसमें टाइम कंज्यूमिंग था, लेबर ज़्यादा था, राइट। द वेरियस ट्रेडिशन वेज आर, फर्स्ट इज मोट, दैट इज़ पुली सिस्टम। पुली सिस्टम मतलब पुली से पुल किया जाता है वाटर को, उसके बाद फिर वाटरिंग की जाती है। देन चेन पम्प, लुक एट हियर, सेकेंड इज 1.4 का बी देखिए यहाँ पास, ये लुक एट दिस इमेज, दिस इज चेन पम्प, राइट। चेन पम्प के थ्रू वाटरिंग की जा रही है। आफ्टर दैट दिस इज धकेली, ढेकली सिस्टम। देन लास्ट वन इज राहत। लुक एट हियर, दिस इज एनिमल के बुल के जो नेक है उस पे ये राउंडिंग वाइट कलर, ये दैट इज वुड, वुड लगा दिया गया है, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसे गोल गोल घूमते जाते हैं, और जैसे जैसे ये घूमते हैं वैसे वैसे ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या होता है, राउंड होते जाता है, और वाटर यहाँ से पुल उठाते हैं, रिसीव करते हैं और थ्रो करते हैं, लाइक दैट। ये ऐसे ऐसे कुछ सिस्टम्स हैं। यू कैन ऑल्सो वॉच इन यूट्यूब, you can get YouTube, or you can explore the net. You also get a better result. You can see how they use all these things, right. Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. ठीक है, तो पम्प्स का मेन यूज़ किया जाता था वाटर लिफ्टिंग के लिए, और उसके लिए वो पंप को रन करने के लिए क्या ज़रूरत थी, या तो डीजल की, या तो बायोगैस की, या इलेक्ट्रिसिटी की, और सोलर एनर्जी की। इट इज़ यूज टू रन दीज पम्प्स, राइट। नाउ modern methods of irrigation, that is important. Please try to remember all these things in your mind. First is the sprinkle system, second is the dripping system, right. First, drip system. What is sprinkle system? Sprinkle system is this system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipes, देखिए यहाँ पास इस इसमें देखिए ये perpendicular pipes है ना, ये देखिए यहाँ पास पाइप्स के थ्रू पूरे फील्ड में ये पाइप्स लगा दिए गए हैं, ठीक है। और फिर ना जैसे शावर होता है ना, आपने देखा होगा शावर में कैसे वाटर आता है, ऐसे जैसे शावरिंग होती है ना वाटर की, वैसे यहाँ से भी स्प्रिंकल्स जैसे वाटर निकलता है और पूरे फील्ड में वाटरिंग की जाती है, ठीक है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, इवन sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotation nozzle on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles, right. It gets sprinkled on the crops as if it is raining. Sprinkle is very useful for lawns, coffees and plantation and several other crops, right. Okay, now second is dripping system. Look at this image, this is the dripping system, right. इसमें क्या करते हैं, ड्रिपिंग सिस्टम में एक पाइप होती है जो सिर्फ प्लांट्स के रूट में वाटरिंग करती है, ठीक है। हम पूरे फील्ड को वाटर नहीं करते, प्लांट्स के रूट को वाटर करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर तो एब्जॉर्ब हमारा रूट ही करता है, प्लांट्स का रूट ही एब्जॉर्ब करता है वाटर को ना। तो वाटरिंग हम कहाँ करते हैं, प्लांट्स के रूट में करते हैं। लुक एट हियर, in this system the water falls drop by drop directly near the roots, so it is called drip system. It is best technique for watering fruit plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in region where availability of water is poor. Okay, now you can understand what is the drip system, what is the sprinkle system, what is the traditional methods, what is the modern methods of irrigation. Please try to remember all these things in keep your mind, which everything which we will discuss now.
right? Then protection from weeds. Now this from this topic we will discuss tomorrow. From this topic, protection from weeds. Now more we'll learn about more things. Okay, so this is your have a good day.